हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 15 जून गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। इसी प्रकार राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है, पिता भी भगवान का प्रतिनिधि होता है। ये सब शास्त्रों के कथन है, क्योंकि वे मार्ग निर्देशन करते हैं। राजा मार्ग निर्देशन करता है, गुरु मार्ग निर्देशन करता है, पिता मार्ग निर्देशन करता है। वह मार्ग निर्देशन क्या है कि शिक्षा और संस्कृति द्वारा किस प्रकार कृष्णा भावना भावित बना जाए। मायापुर 15 जून 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। This is called Vairag. Vairag. Jnana Vairag Chukta. This is required. In human life, this intelligence required. Vairag. Not to serve this material world, but to serve Krishna. The Mayavadi philosopher, they simply stop these material activities. Just like Buddha philosopher. Nirvana. He simply advises to stop this. But after stopping, what is that? No, zero. Zero. Oh, that cannot be. That is not possible. This is their mistake. But the people to whom Buddha philosophy was preached, they are not so intelligent that there can be better service after giving up this service. Therefore, Lord Buddha said, you stop this service, you become happy, because ultimately everything is zero. Shunyavad, Nirbisheshvad. The Mayavadi, there are two kinds of Mayavadi. The impersonalist and the voidist. They are all Mayavadi. So, their philosophy is good so far, because a foolish man cannot understand more than this. A foolish man, if he is informed that there is better life in the spiritual world to become servant of God, Krishna, they think, I became servant of this material world, I have suffered so much, again servant of Krishna? They shudder. No, this is not good. This is not good. As soon as they hear of service, they think of this service, this nonsense service. They cannot think of, yes, there is service, but there is simply Ananda. What is still more eager to serve Krishna? That is spiritual world. That they cannot understand. So these Nirbisheshvad, impersonalists, they think like that. Just like a diseased man lying on the bed, and if he is informed that when he will be cured, he will be able to eat nicely, he will be able to walk. He thinks that again walking, again eating, because he is accustomed to eat bitter medicine and sagudana, not very palatable, and so many things, passing stool and urine activities on the bed. So as soon as he informed that after being cured, there is also passing of stool and urine and eating, but that is very palatable. He cannot understand. He says it is something like this. So the Mayavadi impersonalists, they cannot understand that serving Krishna is simply pleasure and blissful. They cannot understand. Therefore they become impersonalists. No, the absolute truth cannot be personal. That is another side of the Buddha philosophy. Impersonality means zero. That is also zero. So Buddhist philosophy, they also make the ultimate goal zero, and this Mayavadi, they also make the ultimate goal. They do not understand that there is life, blissful life by serving Krishna. Therefore,
Here, Arjuna is playing just like ordinary man. So he says to Krishna, you wanted me to fight, to become happy, to get the kingdom, but by killing my own men, nimittani, viparita. You are misleading me. Nimittani chaposami viparita. I will not be happy by killing my own men. That is not possible. How you are inducing me? So he said, nimittani cha viparitani pasyami. No, nacha saknami. I cannot stand here. Let me go back. Take my chariot back. I am not staying here. Nacha saknami avastha. Brahmati vacham. I am becoming bewildered. I am puzzled now. So this is the position, material world. We are always in problem, puzzle. And when something better is proposed to the materialistic person, that you take to Krishna consciousness, he will be happy. He sees nimittani viparitani. He is opposite. What is Krishna consciousness? I shall have. My family is in trouble. And I've got so many problems. What this Krishna consciousness will help me. Nimittani viparita. This is material condition of life. Therefore, it requires time. Little time to understand. That is Bhagavad Gita. The same Arjuna, he is now finding nimittani cha viparitani. When he will understand Bhagavad Gita, he will say, yes, Krishna, what you are saying, it is right. It is right. Because after instructing Arjuna, Krishna will ask him, now what do you want to do? Because Krishna does not force. Krishna says that you surrender unto me. He does not force. You must surrender. I am God. You are my part and person. No, he will never say that. Because he has given you little independence. He will not touch it. Otherwise, what is the difference between a stone and a living entity? A living entity must have independence, although it is very little, minute. That Krishna does not touch. He will never touch. He will have to agree. Yes, Krishna. I shall surrender. Yes, that is for my benefit. And this is Krishna consciousness. You must voluntarily agree, not hackney, mechanical. A spirit master says like this, all right, let me do it. No. You have to understand very nicely. Tesam satajyuktanam bhajatang priti purvakam. Priti, with love. When you work for Krishna with love and enthusiasm, that is your Krishna conscious life. If you think that it is a hackney, it is troublesome, and what can I do? These people ask me to do it, I have to do it. That is not Krishna consciousness. You have to do it voluntarily and with great pleasure. Then you know. Utsaha, dhajya, tat karma pravartana, sato vitti sadhu sangi, saravi bhakti prasiddhati. You will find in all. Ubadesham. Always you should be enthusiastic. Utsaha, dhajya, with patience. Tat karma pravartana. Nishchaya. Nishchaya means with confidence. When I am engaged in Krishna's business, Krishna's activities, Krishna will surely take me back to home. Nishcha. And Krishna says, Manmana bhavad bhaktam jani man namastu. I will take you back. It is stated. Krishna is a liar. So we have to work with enthusiasm. Just not be puritan. That will be accepted by Arjuna at the end. Krishna will ask him, my dear Arjuna, what is your now decision?
Arjun will say, yes, tat prasadat kesava, nasto moha, my all illusion is now gone by your mercy. Karishe vachanam tava. Now I shall fight. Yes, I shall kill all my king. That's all. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगम पाइनो अनित्य स्ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पे भगवान सहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते, कि अर्जुन ये शरीर तो परिवर्तित है और जिस दिन ये शरीर इररिपेलेबल हो जाएगा, अब उसको रिपेयर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा खराब हो गया तो आत्मा उसको छोड़ के दूसरा शरीर ले लेती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अर्जुन मान लीजिए बोलता है नहीं नहीं, लेकिन प्रभु मैं तो भीष्म के शरीर से आसक्त हूं ना, इस शरीर को प्रेम करता हूं, द्रोण के शरीर को प्रेम करता हूं, आत्मा को तो नहीं देखा लेकिन मैं शरीर से प्रेम करता हूं, अब इस शरीर को कैसे मारूं? तब भगवान बोलते हैं देखो अर्जुन, जैसे सुख अपने आप आता है, दुख अपने आप आता है, वो आता भी है चला भी जाता है। भौतिक सुख अपने आप आता है, भौतिक दुख अपने आप आता है। दूसरा, ये टिकते नहीं दोनों, ये आते हैं चले जाते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? शीतोष्ण, जैसे सर्दी और गर्मी। सर्दी का मौसम है, फिर गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है। ये ऋतु चक्र जो है वो चलता रहता है। ऐसे ही सुख दुख का भौतिक संसार में चक्र चलता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सहते हैं। जो उत्तर भारत में रहते हैं, कितनी ठंडी है, गर्मी भी है ठंडी भी है। हम तो बंबई में रहते हैं समुद्र किनारे, तो उतनी ज्यादा गर्मी नहीं, उतनी ज्यादा ठंडी नहीं, लेकिन बारिश। तो ये तो सबको सहना पड़ेगा ना ऋतु, इससे तो बच नहीं सकते आप, इससे तो भाग नहीं सकते। अभी चलो फैसिलिटी बन रही है, गर्मी में एसी लगा दिए और सर्दियों में हीटर लगा दिए, गर्म कपड़े पहन दिए, लेकिन फिर भी सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी का एहसास तो होगा ही ना। उसके कारण क्या हम अपनी ड्यूटी करना छोड़ दें? जैसे एक माता है, हम भारत में रहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है, सब बहुत ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है कि किचन में एसी लगा हुआ है सेंट्रल, तो किचन में गर्मी तो होगा, रसोई में आप पकाएंगे गर्मी होगा। तो मई का जब मौसम आता है, भारत में गर्मी हो जाती है प्राय मई में, तो एक माँ क्या बोलेगी, एक पत्नी क्या बोलेगी अपने पति को? मैं नहीं बनाऊंगी खाना क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। हो सकता है बोल भी दे, लेकिन करना पड़ता है।
करते हैं। एक माँ क्या, बच्चा जब बोलेगा मम्मी मुझे भूख लगी, स्कूल से आएगा दोपहर में 1 बजे, बोलेगा भूख लग गई, तो उसकी माँ क्या बोलेगी, बहुत गर्मी है मैं नहीं पकाऊंगी। नहीं, वो पकाती है, उसका ड्यूटी। तो गर्मी में वो अपना ड्यूटी करती है। सर्दी में भी, हाँ सर्दी में कोई बोलेगा किचन में तो खाना पकाना अच्छा है, लेकिन ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ता है। तो सर्दी हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, हमको सबको सहते हुए अपना धर्म, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, उसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम और ज्यादा इस मृत्यु संसार में फंसते जाएंगे। क्योंकि जो हमें करना है करना है। अभी आप ऑफिस नहीं जाते क्या? सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ऑफिस जाते हैं क्योंकि पैसा आता है, उससे घर चलता है, सहते हैं ना। वैसे ही जीवन में सुख और दुख को सहते हुए अपना धर्म करो। और क्या है मेन धर्म? मेन धर्म, सबसे जो ऊंचा धर्म है आत्मा का, वो है परमात्मा की, भगवान की सेवा करना। ऋषिकेन ऋषिकेश, अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से भगवान की सेवा करना, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। हालांकि भगवान की सेवा करने से सिर्फ आनंद मिलता है, लेकिन शुरू में क्या होता है ना, ट्रांजिशन फेज होता है। ठंडी बहुत लग रही है, सवेरे उठ के प्रभु जी कैसे जप करेंगे, बहुत ठंडी है, नहीं उठना पड़ेगा। आप जॉब के लिए उठते हैं, मान लीजिए, चलो ज्यादातर तो हम देखते हैं किसी का जॉब 9 बजे 8 बजे, बच्चों का स्कूल तो 7 बजे ही है, तो 6 बजे उठना पड़ता है तैयार होने के लिए। माता को तो फिर 5 बजे उठना पड़ता है सब कुछ अरेंजमेंट करने के लिए। तो माँ तो ये नहीं कह सकती ना, मैं भी सो जाती हूँ, बच्चे भी सो जाओ, स्कूल को छोड़ दो, ऐसा तो होगा नहीं। अगर किसी का जॉब तो सवेरे, अभी शिफ्ट में होता है, किसी का जॉब सवेरे 6 बजे चालू हो जाता है, तो सर्दी है तो क्या जॉब पे नहीं रहेंगे? अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो ये भौतिक ड्यूटी है। तो आध्यात्मिक ड्यूटी को हम थोड़ा बहाना बना लेते हैं। और ठंडी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज बारिश बहुत है, तो भक्ति नहीं करने के हमारे मन बहुत सारे बहाने ढूंढता है। आज पेट में दर्द है, आज सर में दर्द है, आज नींद बहुत ज्यादा आ रही है, आज नींद नहीं आ रही, आज खाना ज्यादा खा लिया, आज बिल्कुल खाना नहीं खाया। मन के तो हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत बहाने हैं आपको अपना आध्यात्मिक धर्म, भक्ति नहीं करने देने के। लेकिन हम सबको सहते हुए अपने धर्म में आगे बढ़े। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन के लिए 2 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक कौंतेय और एक भारत। कौंतेय मतलब तुम कुंती पुत्र हो, एक क्षत्राणी के पुत्र हो, तुम्हारी माता, कितना उनका बड़ा नाम है पूरे भारतवर्ष में, और तुम कुंती पुत्र हो के ऐसा बोलते हो कि मैं अपने धर्म से पीछे हट जाऊंगा, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना आज भी कि तुम्हारे माँ बाप ने इतना कुछ किया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, खराब मत करो उस नाम को। तो ऐसे ही भारत बोल रहे हैं। भारत मतलब तुम भरतवंशी हो। तुमको पता है ना भरतवंशियों की परंपरा, प्राण जाए पर वचन न जाए, चाहे वो रघुकुल हो चाहे भरतवंश हो, इन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए, और तुम भागना चाहते हो अर्जुन अपना धर्म छोड़ के। और अर्जुन के लिए युद्ध करना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों धर्म है। देखिए 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक भौतिक जो शरीर से किया जाता है, मतलब पढ़ाई करना, स्कूल जाना, खाना खाना, जॉब करना, ये सब शरीर से होता है, इसको भौतिक धर्म कहते हैं, ये तो करना है। और जो आत्मा के द्वारा होता है, वो भी शरीर को प्रयोग में करके, लेकिन वो आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है, वह आध्यात्मिक धर्म कहलाता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण की सेवा करना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इसको भक्ति कहते हैं। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना आध्यात्मिक और भौतिक दोनों हो गया, क्योंकि वो क्षत्रिय है तो उसको तो युद्ध करना ही है, तो भौतिक धर्म में युद्ध करना। और कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इसीलिए युद्ध करना अर्जुन के लिए अब भक्ति बन गया।
आगे बताएंगे कि अर्जुन, क्योंकि तुम्हें मैं कह रहा हूं युद्ध करने के लिए, वह भक्ति है, और भक्ति करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भक्ति करने से किसी का नुकसान नहीं होगा। तुम भीष्म का युद्ध करोगे, द्रोणा का युद्ध करोगे, मेरे सामने इनका मृत्यु होगा, ये सबका मृत्यु मेरे सामने होगा, ये सबका उद्धार हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा आत्मा का। और क्योंकि तुम भी भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारा भी उद्धार होगा। तो इस युद्ध में किसी का नुकसान नहीं, ये धर्म युद्ध है, इसमें सबका फायदा होगा। और जहां भगवान स्वयं साक्षात खड़े हैं तो किसी का नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए अपने आध्यात्मिक धर्म को, भौतिक धर्म तो फिर भी कर लेते हैं, अपने आध्यात्मिक धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। मन हजारों बहाना देगा, मन को साइड में रखिए और कृष्ण जो कह रहे हैं उस उपदेश का पालन करते हुए आगे बढ़िए। हरे कृष्ण।